In last class, in redox reaction, we discussed the rules for calculating oxidation number of an element in a molecule or compounds. Some rules we already discussed, that first group elements or alkyl metals has positive +1 charge, +1 oxidation number. Second group elements, oxidation number +2. Generally, oxidation number of hydrogen +1, but in case of hydride, its oxidation number -1. General oxidation number of oxygen -2, but in case of peroxides, its oxidation number -1. And when oxygen bonded with fluorine in form of peroxide, then oxidation number +1, and in case of difluoride is oxidation number +2. General oxidation number of halogens -1, fluorine only shows -1 oxidation state due to its most electronegative element and electron fill in second orbit, and the other elements chlorine, bromine and iodine, when bonded with fluorine or oxygen, then these elements can also shows +1, +3, +5 and +7 oxidation states in various compounds. Okay, ये हमारा टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो पॉइंट है. एक और पॉइंट था हमारे पास, इन फ्री स्टेट और व्हेन एटम्स, same atoms bonded with covalent bond, then their oxidation number is 0. For example, hydrogen Cl2 P4, a covalent bond between two same atoms, then oxidation number 0. बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन क्या था अपने पास, कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसमें एटम्स का इंडिविजुअल चार्ज अगर रिमूव कर दें तो जो हमारे पास चार्ज जनरेट होगा सेंट्रल एटम के ऊपर, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर. सो इन फ्री स्टेट और व्हेन एटम bonded with covalent bond, then its oxidation number is 0. P4, S8, H2, C2, O2, ये सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है. नेक्स्ट पॉइंट, anions, the oxidation number of ion, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन, नोट कर लो इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इक्वल टू इट्स चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंगल एटॉमिक आयन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ single atomic ion is equal to its charge, For example, Na positive, the oxidation number of Na positive single atomic ion के फॉर्म में चार्ज क्या है, +1. ठीक है, so its oxidation number +1. ठीक है. Cl negative, then oxidation number -1. O2 negative, then oxidation number -2. तो सिंगल एटॉमिक आयन पे जो चार्ज होगा वही क्या उसका ऑक्सीडेशन नंबर है. तो ये तो हमारे पास सिंपल जो ऑक्सीडेशन नंबर्स का ट्रेंड है वो हमको पता होना चाहिए एलिमेंट्स के लिए, बिकॉज जब हम कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो उस केस के अंदर हमको इनके चार्ज को यूज में लेना है. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करो इसमें. नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक सारे पॉइंट हो गए, अब केवल अपने को कॉम्प्लिकेटेड का कैलकुलेट करना है. तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, of all the atoms
of all the atoms in a compound must be 0. In a compound must be 0. In polyatomic ion, in polyatomic ion, the algebraic sum of all the oxidation numbers, algebraic sum of all the oxidation number of atoms of the ion must equal the charge on the ion. For example, suppose KMnO4 potassium permanganate. In KMnO4, determine the oxidation number of manganese. मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करना है कंप्लीट मॉलिक्यूल में, कंप्लीट कंपाउंड में. तो उस केस में क्या करना होगा, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करना है दैट्स अज्यूम एज x. ठीक है. देन पोटेशियम का चार्ज +1. बिल्कुल ठीक है पंकज, +1. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम +1 प्लस x प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2. और क्या बोला हमने, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू 0 इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल. जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी अपने पास एलिमेंट्स है, एटम्स है, आयंस है, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका एल्जेब्रिक सम कितना होगा, 0. सो इक्वल्स टू 0. देन 1 प्लस x माइनस 8 इक्वल्स टू 0. then x minus 7 equals to 0, then x equals to +7. ठीक है. But in case of polyatomic ion, suppose CO3 2 negative, polyatomic ion, determine the oxidation number of carbon. Then carbon is x, number of oxygen 3, oxidation number of oxygen -2. Then algebraic sum of polyatom equal to the charge of ion. ठीक है. इक्वल्स टू -2. तो ये चार्ज कितना है, -2. ठीक है. देन x -6 इक्वल्स टू -2. देन x इक्वल्स टू -6, राइट साइड आएगा, पॉजिटिव हो गया. देन 6 -2 इक्वल्स टू +4. ठीक है. तो पॉलीएटॉमिक आयन में जो एल्जेब्रिक सम है वो किसके इक्वल होगा, चार्ज के इक्वल होगा. बट इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 0. ओके. तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का लास्ट फॉर्म था. अब हम करेंगे इसके एग्जांपल्स. पहले हम करते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल. क्वेश्चंस है. Exercise question 1, 8.1. Assign oxidation number to the underlying element in each of the following species. Sodium dihydrogen phosphate. Oxidation number of phosphorus. In sodium dihydrogen phosphate. फर्स्ट देखो यहां पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, कैलकुलेट करें. सोडियम +1, हाइड्रोजन ऑल्सो +1. ठीक है. देन फॉस्फेट x एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4, चार्ज -2 इक्वल्स टू
0. Then 1 plus 2 plus x minus 8 equals to 0. Then x minus 5 equals to 0 and x equals to plus 5. Okay, very good Pankaj. तुषार वेरी गुड. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस, हाँ रियांशु बिल्कुल करेक्ट है. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पता करने के लिए. ओके देखो, स्ट्रक्चर के लिए हमको वेट करना होगा. 4th चैप्टर आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर. ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर अज्यूम करना पड़ता है. पहले स्केलेटन बनाना होगा इसका अपने को, और उसके बाद उसके जो एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स है उनको रीअरेंज करना होता है उनका ऑक्टेट कंप्लीट करके. तो 4th चैप्टर में आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रक्चर्स, वहां पर हम डिस्कस करेंगे. इसका मैं बता सकता हूं हमको स्ट्रक्चर क्या बनेगा. दिस इज फॉस्फेट. ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है इसके अंदर, these electrons move towards the oxygen, it's negatively charged. ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज. उस केस में सोडियम, सॉरी केवल एक ऑक्सीजन के साथ होगा ना, तो सोडियम कहां अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ. तो आयनिक कंपाउंड है सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट. सोडियम कैटायन और फॉस्फेट एनायन के फॉर्म में. ठीक है, तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया अपन ने. नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर फटाफट बताओ कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेट. यस 6. वेरी गुड रियांशु, प्रियांशु, पंकज. यस +6. वेरी गुड. कनेश जांगीर, निखिल कितना आए नहीं, +6. वेरी गुड. चलो देखो जिनको नहीं आया वो देखो ध्यान से वापस. सोडियम +1, ओके, प्लस हाइड्रोजन +1, देन सल्फर X, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4, चार्ज -2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, then 1 plus 1 plus x minus 8 equals to 0. X minus 6 equals to 0. Then x equals to +6. Okay. Third, H4P2O7. 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 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस, ओहो +6. कुशांक +6. ओके देखते हैं यहां पर +6 पॉसिबल है या नहीं है. यस +5 राइट आंसर, +6 रॉन्ग आंसर. यस +5. देखो एक्चुअली यहां पर अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें तो कैसा आएगा अपने पास, 4 + 2x + 7 - 2 equals to 0. 4 + 2x - 14, then 2x - 10 equals to 0 and 2x equals to 10 and x equals to 10 divided by 2 +5. ओके, तो +5 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है. इन केस अगर आपका 6 आ रहा है और आपको चेक करना है कि 6 राइट है या रॉन्ग है, तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करो. क्या होता है फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 15, 3s2 and 3p3, सॉरी हाँ 3s2 and 3p3. तो वैलेंस ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है. तो फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन तो रिलीज कर सकता है. ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे रिलीज करेगा, बिकॉज इसके वैलेंस ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है ना, तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है. ओके, नेक्स्ट K2MnO4. K2MnO4 फटाफट बताओ कितना ऑक्सीडेशन नंबर, K2MnO4.
+7 +7 तुषार और +7 +7 कैसे होगा बेटे? 6 आएगा। जल्दी कर दिया, मिस्टेक कर दी। यस 6 बिल्कुल करेक्ट है 6। पलक ठीक है। पंकज वेरी गुड। यस प्रियांक +6 ओके। निकला वापस? पक्का चेक करूं? अच्छा ठीक है ओके। +6 है देखो बेटा। पोटेशियम 2 मीन्स +2, मैग्नीज X +4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू 0, देन 2 + x - 8, then x - 6, then x इक्वल्स टू +6 ओके। चलो बाकी आप लोग करना है इसके अंदर। अब देखो यहां पर कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं अपने पास। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Br3O8 Br3O8 Br3O8। सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन कितना होगा? कौन सा बताना बेटा? H का क्या बताना है बेटा? H फर्स्ट का H ओके। फर्स्ट का H बहुत सिंपल है। पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फेट ऑल ट्वाइस डॉट 12H2। इस केस में हमको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ठीक है कैसे करें भाई? पोटेशियम +1 हाँ 6 आएगा बिल्कुल ठीक है। एल्यूमिनियम +3 देन प्लस SO4 का होल ट्वाइस कंप्लीट मॉलिक्यूल के बाद नंबर कितना है? 2 यानी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो मैंने यहां 2 लिखा। सल्फर X ऑक्सीजन -2 इक्वल्स टू 0। 1 + 3 कितना हो गया? 4। 2 को मल्टीप्लाई किया x से 2x -8 है। -8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? -16 देन 2x -12 देन 2x इक्वल्स टू 12 देन x इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स +6 ओके। यस बिल्कुल ठीक है रियांशु। +6 ऑक्सीडेशन नंबर। देखो यहाँ पर SO4 का होल ट्वाइस था तो उसके अंदर कोई परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। SO4 का होल ट्वाइस से कोई दिक्कत नहीं है। 2 × x + 4 × -2 कंप्लीट मॉलिक्यूल्स को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ओके। अब देखो Br3O8 इसका ऑक्सीडेशन ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। कितना आएगा Br का ऑक्सीडेशन नंबर? 3x +8 -2 इक्वल्स टू 0 देन 3x 8 2 जा 16 3x इक्वल्स टू 16 देन x इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 3। अब ये वैल्यू तो किस में आ गया अपने पास? ये वैल्यू हो गई अपने फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है ना? वैल्यू कैसी हो गई अपने पास? फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। और फ्रैक्शन तो कैसे निकालें? ठीक है तो यहां पर ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है 16/3 that the average oxidation number of bromine in Br3O8 molecule। ठीक है यहां पर 16/3 जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट्स एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8 मॉलिक्यूल। कंप्लीट Br3O8 मॉलिक्यूल में जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है दैट्स 16/3। अब यहां पर जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर अगर कैलकुलेट करें हम तो उसके लिए हम क्या करना होगा? इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने इसके अंदर।
Br, Br and Br, ठीक है, डबल बॉन्ड O, 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 ठीक है, एंड फाइनली डबल बॉन्ड O, Br3O8। अब देखो यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, फर्स्ट Br, सेकंड Br एंड थर्ड Br। फर्स्ट Br का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो कितना है, -2, Br पे कितना चार्ज आ गया, +2। ये इलेक्ट्रॉन भी किस तरफ शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन पे, चार्ज कितना है, -2, Br पे कितना चार्ज आएगा, +2। ये इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीटली शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे, इस पे है -2, Br पे कितना आया। तो Br फर्स्ट जो हमने यहां लिखा है Br1, इस पे जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो गया, +2 +2 +2 इक्वल्स टू +6, ठीक है। तो इंडिविजुअली ब्रोमीन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ गया, +6, एंड दिस ब्रोमीन ऑल्सो +6। अब पॉइंट ये आया कि +6 क्यों, यहां पर भी तो बॉन्डिंग था, बट ये जो बॉन्ड है वो सेम एटम्स के बीच में, ठीक है, सेम एटम्स हैं, Br Br दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं हुआ है। +6 +6, अब इसका क्या करें अपन, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इस पे, -2 +2 -2 एंड +2। तो जो सेकंड Br है, हाँ ठीक है बेटा, इसका कितना आ गया, +4 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब देखो 6 + 4 10, 10 + 6 कितना हो गया, 16। कितने Br थे, 3, तो अपने पास एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था, 16/3, ठीक है। दिस वन इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, और यहां पर अगर इंडिविजुअल कैलकुलेट करना है तो हम Br का इंडिविजुअल निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। एक और एग्जांपल दिया हुआ है इसी टाइप का, S4O6 2 नेगेटिव, S4O6 2 नेगेटिव, टेट्राथायोनेट आयन, टेट्राथायोनेट आयन। अब देखो इस केस में 4x + 6 - 2 इक्वल्स टू -2, पॉलीएटॉमिक आयन के फॉर्म में आ गया। देन 4x - 12 इक्वल्स टू -2, देन 4x इक्वल्स टू 12 - 2, देन x इक्वल्स टू 10/4। वेरी गुड। तो 10/4 क्या है अपने पास, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर 10/4। और अब इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें, सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी तो 11 चल रही है, 11th में बैठना है, 12th में है ना, हाँ तो 12th का, तो 12th के बैच के साथ आ जाना। 12th का है तुम्हारा टाइमिंग कितने का है, 11:40 50, हाँ तो 11:50 पे 12th क्लास है, अभी तो 11 चल रही है। हाँ वो देखो वो बता देगा, वो भी वही, हाँ ठीक है। देन सल्फर O नेगेटिव, S4O6 हो गया, S4O6। अब इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें, यहां सल्फर का कितना आ गया, +5, ये +2 +2, ठीक है। तो उस केस में अपने पास यहां पर सबका इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकाले अपन, यहां पर कितना आ गया, +5, ये कितना आएगा, +5, और बाकी जो सल्फर है उस पर कितना आएगा, 0। रीजन, सेम एटम बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। तो कितना हो गया टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, 5 + 5 10, कितने सल्फर पे, 4 पे, तो 10/4, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना था। क्लियर है ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। नाउ स्टार्टिंग द नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन।
नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंसिंग ऑफ, ओके पंकज पलक, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है हमको, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। For balancing redox reaction, we can use two methods. First one is Fe3O4, Fe plus 2 लेना है, yes, plus 2 होगा। Fe3O4, calculate the oxidation number of Fe, 3x plus 4 minus 2 equals to 0, then 3x minus 8 equals to 0, 3x equals to 8, then x equals to 8 by 3. Average oxidation number of Fe is 8 by 3. ठीक है, तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है Fe का। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने के लिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, देन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe in Fe3O4. नेक्स्ट हेडिंग, बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। नोट करें, फॉर बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन, for balancing the redox reaction, we can use two methods. First one, electron ion method, and second, oxidation number method. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आयन मेथड, और इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है, एग्जांपल लेके हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल है Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव gives Cr plus 3 and SO4 2 negative. Balancing this redox reaction by electron ion method. मेथड के जो पॉइंट्स हैं वो अपने पास एग्जाम में नहीं पूछेगा कि मेथड के पॉइंट्स क्या है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए क्या मेथड अपन यूज में ले रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप फॉर बैलेंसिंग दिस रिएक्शन, divide the redox reaction into half reactions. First point, divide the redox reaction in two half reaction, oxidation half reaction and reduction half reactions. ठीक है, in first step redox reaction divide into half reactions, oxidation half reaction and reduction half reaction. In this reaction, which species is oxidized? In this reaction, which species is oxidized? बताओ फटाफट, कौन सा स्पीशीज यहां पर ऑक्सीडाइज हुआ है? S ऑक्सीडाइज है, यस। और रिडक्शन किसका हुआ? क्रोमियम का, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, जिनको पता नहीं चला कि ऑक्सीडेशन किसका है, रिडक्शन किसका है, तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर कैलकुलेट करें। इन Cr2O7 2 नेगेटिव, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना है? +6, ठीक है। 7 2 14, -14, ये 2x हो गया, इक्वल्स टू -2, -14 राइट साइड में आएगा, +14 हो गया, +14 में से -2 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया? +12, देन 2x इक्वल्स टू 12, देन x इक्वल्स टू 12/2 इक्वल्स टू 6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 एंड इन राइट हैंड साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +3, ठीक है। सो दिस इज हाफ रिडक्शन रिएक्शन, ओके। और ये अगर हाफ रिडक्शन रिएक्शन है, देन सेकेंड स्पीशीज क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डिवाइड इनटू हाफ रिएक्शंस। फर्स्ट Cr2O7 2 नेगेटिव टू Cr+3, हाफ रिडक्शन, ऊपर नोट करना है यहां पर, हाफ रिडक्शन रिएक्शन।
एंड सेकेंड हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, SO3 2 नेगेटिव टू SO4 2 नेगेटिव। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। इन सेकेंड स्टेप बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको बैलेंस करना है। देखो रिडक्शन रिएक्शन में लेफ्ट साइड कितने क्रोमियम है 2, राइट साइड कितना क्रोमियम है 1, तो मैंने यहां क्या लगा दिया 2। ठीक है, क्रोमियम को बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। ठीक है, यहां सल्फर ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ओके, इन थर्ड स्टेप बैलेंस द ऑक्सीजन। कैसे बैलेंस करना है ऑक्सीजन को? जिस तरफ डेफिशिएंसी होगा ऑक्सीजन का उस तरफ H2O मॉलिक्यूल ऐड करना है। ठीक है, ऐड द H2O मॉलिक्यूल ऑन दैट साइड वेयर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। जिस तरफ ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी है उस तरफ H2O मॉलिक्यूल ऐड कर दो। Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr+3। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है यहां पर? यहां कितना है 0, तो 7 H2O मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। ओके, नाउ बैलेंस द हाइड्रोजन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है यहां पर 14। ठीक है, यहां पर कितना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0, तो जिस एंड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो उस एंड पे H+ आयन ऐड कर दो। देन 14 H+ आयन ऐड इन लेफ्ट साइड डायरेक्शन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट सब बैलेंस हो गया। देन बैलेंसिंग चार्ज, चार्ज को बैलेंस करना जरूरी है अपने पास। ठीक है, कैसे करना है बैलेंस? 14H पॉजिटिव, इट मींस पॉजिटिव 14 चार्ज, एंड ऊपर कितना चार्ज है +2 चार्ज। यस, एसिडिक मीडियम बेटा यहां पर। अभी हम यहां पर जो रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं फॉर एसिडिक मीडियम। ठीक है, मीडियम का इफेक्ट होगा, एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है, तो आज हम एसिडिक मीडियम की रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज बैलेंस करना है। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज मींस +14, Cr2O7 2 पे पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी नेगेटिव चार्ज। कितना चार्ज है नेगेटिव -2, +14 -2 कितना हो गया +12। लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है +12। राइट साइड पे चार्ज कितना है 2 3 जा 6 +6 चार्ज। ठीक है, इट मींस लेफ्ट साइड से हमने 12 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है और राइट साइड से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है 6। ठीक है, तो आप दोनों को बैलेंस कैसे करें? या तो राइट साइड से 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें या 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, बट 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करना इजी है। तो हमने क्या किया 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया लेफ्ट साइड में। Cr2O7 2 नेगेटिव, 14H पॉजिटिव, देन 6 इलेक्ट्रॉन Cr+3 +7H। ओके, लेफ्ट साइड रिएक्शन बैलेंस हो गया। राइट साइड पे आ जाओ फटाफट क्योंकि बंद हो जाएगा बीच में। सल्फर बैलेंस है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4, तो 1 H2 मॉलिक्यूल ऐड कर दें यहां पर क्योंकि इस तरफ ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी है, तो SO3 2 नेगेटिव प्लस H2O। हाइड्रोजन बैलेंस करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, देन SO3 2 नेगेटिव प्लस H2O, SO4 2 नेगेटिव एंड 2H+ आयन। चार्ज बैलेंस करें अपन यहां पर -2 चार्ज, यहां कितना है -2 एंड +2, 0 हो गया। तो यहां पर राइट साइड में 0 चार्ज है और लेफ्ट साइड में कितना है -2, इट मींस यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। तो यहां क्या करना है 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा अपने को, -2 चार्ज हो जाए। तो मैंने राइट साइड डायरेक्शन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया। अब क्या करना है इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों हाफ रिएक्शंस के इलेक्ट्रॉन्स जो उनको इक्वल करना है। तो क्या करें, बहुत सिंपल सा तरीका है, यहां जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे इस स्पीशीज को मल्टीप्लाई कर दें और यहां जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे इस स्पीशीज को मल्टीप्लाई कर दें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे। ठीक है,
कितना आ गया 6SO3 2 नेगेटिव प्लस 6H2O 6SO4 2 नेगेटिव प्लस 12H पॉजिटिव एंड 12 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर जो है अपने पास क्या लिखेंगे अपन 2Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 2 जा 28 12 इलेक्ट्रॉन 4 क्रोमियम प्लस 3 एंड 14H। अब दोनों हाफ रिएक्शंस को मर्ज कर दो, दोनों हाफ रिएक्शंस को मर्ज कर देंगे अपन यहां पर। अब थोड़ा जूम कम कर रहा हूं मैं यहां पर वरना दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। दोनों हाफ रिएक्शंस को मर्ज कर दो और जो कॉमन है उनको कैंसिल कर दो। तो देखो क्या किया अपन ने, दोनों हाफ रिएक्शंस को मर्ज। ओके टाइम कंप्लीट, कोई बात नहीं। अब देखो दोनों हाफ रिएक्शंस को मर्ज कर दिया मैंने। 2Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 28H पॉजिटिव प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो मर्ज कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट में आ जाएंगे, राइट साइड वाले राइट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब मेरे पास और क्या है लेफ्ट साइड में 6SO3 2 नेगेटिव प्लस 6H2। राइट साइड में क्या है अपने पास 4Cr प्लस 3 प्लस 14H2O then 6SO4 2 negative plus 12H positive and 12 electrons। ओके ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। यहां कितना H पॉजिटिव आया ना 28, यहां कितना है 12, तो 28 और 12 को कैंसिल कर दिया। तो कितना बच गया यहां पर 16, ठीक है 16H पॉजिटिव आ गया। और क्या है कॉमन H2O, यहाँ 6H2O है, यहाँ 14 है, तो कितना रह गया 8H2O। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया अपने पास उन सबको लिख दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। 2Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6SO3 2 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव gives 4Cr plus 3 6SO4 2 नेगेटिव एंड 8H2। हो गया बैलेंस रिएक्शन। देखो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमियम 4, सल्फर 6, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 7 2 जा 14 और 6 3 जा 18 प्लस 14 कितना हो गया 32 हो गया क्या, है ना। और यहां पर कितना आएगा वही आ जाएगा 6 4 जा 24 प्लस 8 32, ठीक है। तो ये अपने पास रिएक्शन बैलेंस हो गया।